Hello children, good morning. Today we are going to start with another chapter, one more new chapter, that is lesson number 14, and the title of our lesson is articles. So today we are starting again a new concept of English grammar, that is articles. So what are few articles? A and the. These are the three articles which we are going to learn in this chapter. So children, this is a new topic for you. है ना? We didn't discuss more about articles in our earlier classes, but definitely you know few rules of how to use a and an with the nouns, isn't it children? Hope all of you remember about the uses of a and an with the nouns, because we already know what is the English alphabet very well, and in the English alphabet we have vowels and consonants, both vowels and consonants. So if we know these, we can do this chapter, but few exceptions will be there which we will discuss in this chapter. Okay, so let us start with the chapter, and we can see use of a and an, how to use a and how to use an. Okay, so use of a and an has a simple rule to follow. So this is very simple, because from your earlier classes itself, means from in class 1, class 2 also, you have already learned about the uses of a and an, and we know that simply what we have to do is we have to focus on the phonic sound of the noun that is given, whatever the noun may be, जो भी noun है उसकी starting letter की phonic sound पे ध्यान रख के हम whether we have to use a or an, we will come to a conclusion. So let us see what the rule that is given here. All we have to do is to listen to the phonic sound, isn't it children? So what we have to do is, first of all we have to listen carefully to the phonic sound. जो भी noun है उसकी phonic sound के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए. When a singular noun begins with a vowel sound, we use an. So ये अंडरलाइन करिए आप. When a singular noun, कोई भी singular noun, मतलब singular noun you know which is single, so which is only one. So कोई भी एक noun एक vowel sound की start होता है, तो it will be, we have to use an. What we have to use? We have to use an before the singular word. And if the sound is that of a consonant, अगर वो नाउन की स्टार्टिंग फोनिक साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो व्हाट वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज अ, ए. ओके, सो ए को हम अ बोल के प्रोनाउंस करते हैं. सो अगर आपके पास जो भी सिंगुलर नाउन है, उससे पहले फोनिक साउंड पे ऑब्जर्व करिए सिंगुलर नाउन की. एंड इफ द सिंगुलर नाउन प्रोनाउंसेस जस्ट लाइक अ ओवल साउंड, वोवल साउंड में अगर प्रोनाउंस हुआ, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सिंपली राइट एन बिफोर द नाउन. नाउन के सामने हम एन लिखेंगे, नाउन से पहले. But if it sounds that of a consonant, मतलब अगर जो भी noun है उसकी sound consonant sound है, तो we have to simply use ये. This is the rule that we have to follow. So first of all, let us be clear about what are vowels and what are consonants, and I am sure that every one of you know this. We know English alphabet very well, and we know that we have 5 vowel sound. They are a, e, I, o, u. A, e, I, o, u, these are the 5 letters which are considered as vowel, and the rest of the letters, मतलब जो बाकी whatever the other letters that are there in the English alphabet are considered as consonants. So let us understand the use of a and an with the help of examples. So here we can see few pictures and the uses of a and an before them. So let us understand this with the clearly with few more examples. So where we use a if it is a singular noun, definitely singular noun, and if it sounds with a vowel sound, we will use an. And if it is a singular noun and if it sounds as a consonant, then we use a. So see the first one, a letter. So children, I told you earlier also, हम
ए को अ जैसा प्रोनाउंस करते हैं. ओके, दैट्स वाई ए लेटर और अ लेटर, अ बॉय, अ बनाना, अ यूनिफॉर्म, है ना. तो आप इधर देखिए, लेटर ल मीन्स, आपको और अच्छे से समझाऊं तो जैसा स्वर और व्यंजन आपको पता है वही ये है ना. तो जैसा इधर लेटर ल साउंड आ रही है, सो ए, बॉय बी, ब कॉन्सोनेंट, बनाना यस, यूनिफॉर्म, बट आपको इधर डाउट होना चाहिए मैम यूनिफॉर्म यू इज ए ववल. यस, यू एक ववल है डेफिनेटली, बट इट डजेंट साउंड एज अ वोवल. वोवल जैसा साउंड नहीं आता है यू, नहीं, यू वाई यू जैसा साउंड आता है, वाई जैसा साउंड. दैट्स वाई वी जस्ट राइट अ बिफोर यूनिफॉर्म, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. ओके बेटा, अभी ये एग्जाम्पल्स आप रीड करिए, मैं इसका एक एक्सेप्शनल केस आपको और अच्छे से समझाऊंगी. नाउ इन द सेकेंड कॉलम we can see an umbrella, an umbrella, see the word, कैसा साउंड आया मैंने क्या बोला, स्वर और व्यंजन. अगर आप हिंदी में स्वर और व्यंजन के हिसाब से वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को देखिए. यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है, बट अम्ब्रेला इट इज ये स्वर की साउंड है अम्ब्रेला. दैट्स वाई एन अम्ब्रेला, an honest girl. See how ma'am is pronouncing the word honest. honest को मैं कैसी प्रोनाउंस कर रही हूँ, an honest, not honest नहीं है, ह साउंड लेंगे आप वो गलत है. एक्चुअली h is silent in honest, honest में h silent है. So we have to pronounce this as honest, not honest. honest, honest means o sound आ रही है, so स्वर की sound है. that's why we have just simply added and before honest. honest के सामने हमने an add किया था. now the next one, an aeroplane. so what it is, an aeroplane, a, aeroplane means a, that's why we have placed an. then an orange, orange के सामने कैसा, orange, o, so again it is a phonic sound of a oval, so that's why we have placed an just before an orange. Is it okay children? So these are the few examples that are given below, and let us know in detail more about this. So see the first exercise that is given over here, fill in the blanks with a or an use करते हुए ये blanks fill करिए. हिंट क्या करनी है आपको, रिमेंबर इट इज द साउंड दैट मैटर्स एंड नॉट द लेटर्स. सो अभी तक आपने सिंपली क्या रूल फॉलो किया, कोई भी नाउन अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हुआ तो सिंपली एन लिख लो, और अगर इफ दे आर स्टार्टिंग विथ ए कॉन्सोनेंट लेटर देन सिंपली राइट ए. but now what you have to do is, we are not small kids now, है ना बेटा, अभी we are just grown up children. जैसे धीरे धीरे आपके एक एक ग्रेड बढ़ता जाता है, फर्स्ट में सेकंड में बेसिक्स अपन ने सीखा, नाउ थर्ड में थोड़ा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा. तो अभी से आपको एक चीज़ रिमेंबर करनी है, वो क्या है कि वेदर ए ई आई ओ यू वोवल से ओके वो हमें पता है, बट ओनली ए ई आई ओ यू देखते हुए आप ए और एन नहीं यूज कर सकते हो. वॉट यू हैव टू डू इज, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड. वोवल साउंड सारे या नहीं, जो भी वर्ड है ए ई आई ओ यू भी हो तो भी उसका साउंड कैसा है. इफ इट इज इन फोनिक ऑफ वोवल देन डेफिनेटली आप ए एन प्लेस कर सकते हो. अगर इफ इट इज द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट देन यू हैव टू प्लेस ए बिफोर दैट. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो आपको फोनिक साउंड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करनी है. Is it okay? So let us do few more examples so that you can get my point clearer. Rahul asked for dash cup of milk. राहुल को एक कप का साउंड आया तो obviously it will be A. It takes dash hour to reach the school. So dash hour. So HOUR मतलब it is not pronounced as hour, ha pronunciation नहीं, because H is silent in this word, so हम HOUR को R, an hour means एक घंटा.
टू रीच द स्कूल। सो आपको ये डाउट आना चाहिए एच इज ए कॉन्सोनेंट, फिर भी मैम ने एन क्यों यूज किया? बिकॉज मैम ने क्या बोला आपको, वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड, साउंड पे आप फोकस करिए, वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड। सो साउंड पे फोकस करना आप, एंड आप इसके ऊपर ही ध्यान रखिए, HOUR व्हाट इट स्पेल्स लाइक, HOUR स्पेल्स लाइक आर। सो अ साउंड आ रही है तो इट विल बी द साउंड ऑफ अ वोवल, वोवल साउंड है, स्वर की आवाज आ रही है इसमें, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लेस एंड बिफोर आर। If you add dash onion to the gravy, it tastes good. If you add dash onion, onion अपन onion is a vegetable, so onion, onion sound आ रही है, so we have simply placed an, we have to add an onion। ग्रेवी में अगर एक अनियन ऐड करेंगे तो हम इट विल बी गुड टू ईट, मीन्स इट टेस्ट गुड। ही लिव्स इन डैश हट, हट, हट में तो एच साइलेंट नहीं है, अट नहीं बोल रहे हम, हट, हट मीन्स झोपड़ी। सो हा साउंड आ रही है तो डेफिनेटली वी विल यूज ए। मदर गेव मी डैश आइसक्रीम, आई वोवल साउंड है, आप स्वर के हिसाब से देखिए, आई इट साउंड्स जस्ट लाइक ए वोवल। सो मदर गिव मी एन आइसक्रीम, एन यूज करेंगे इसके सामने हम। नेक्स्ट, ही एट डैश एग एंड डैश टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में उसने एक एग खाया और एक टोस्ट। एग, ए साउंड आया तो सामने हम एन यूज करेंगे। एंड टोस्ट, टोस्ट, ट साउंड आया तो ए। आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी, मैं एक मूवी देखने जाने के लिए डिसीजन लिया था तो ए। आई बॉट डैश नोटबुक फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से मैंने एक नोटबुक लाया था, अ नोटबुक, हाउ, अ नोटबुक, एक नोटबुक लाया था मैं। सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स प्रोनाउंस द फॉलोइंग। मैं अभी आपको एक एक्सेप्शनल केस समझा रही हूँ, सो जस्ट प्रोनाउंस द फॉलोइंग। UNIFORM, यूनिफॉर्म। EUROPEAN, यूरोपियन। यूनिकॉर्न। सो इन सब में ऑल दिस वर्ड्स बिगन विद द फोनिक साउंड YU, जैसा यू से तो स्टार्ट हो रहे, बट हाउ दे स्पेल लाइक, हाउ वी प्रोनाउंस इट लाइक, हम उनको कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं, हाउ वी आर प्रोनाउंसिंग देम। यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिकॉर्न, मतलब YU, यू जैसा प्रोनाउंस कर रहे, इसमें कहीं अपन को कहीं वोवल साउंड नहीं आ रही है। सो विच इज अ यू मतलब वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, य जैसा यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है विच नेवर कम्स अंडर ए ओवल साउंड्स। क्या होता है, ई, आई, ओ, ऐसी साउंड्स, ये सब क्या वोवल साउंड्स होते हैं, बट दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड YU विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। दैट्स वाई ऐसी लेटर्स जब आते हैं आप सिंपली ई देख के, यू देख के एन मत लगाइएगा, क्योंकि यू इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज एन बिफोर दीज वर्ड्स। चिल्ड्रन, ये ग्रामर में कुछ बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू यूज दिस, एंड आपको ये वर्ड सिंपली याद करिए। इज इट ओके? हैंस वी से अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, इसीलिए हम यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिकॉर्न ऐसी वर्ड्स के सामने अ यूज करते हैं, नॉट एन। ओके, नाउ जस्ट टर्न योर पेज। सो क्या क्या वर्ड्स है, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिकॉर्न, एंड अभी हमने ये भी देखा कि NR, सो HONOUR, ये क्या होता है, ऑनर, HONOUR, ऑनर। ह नहीं होता है, वो ओनर, तो ऑनर होता है तो क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। वी शुड नॉट प्रोनाउंस दिस लाइक हॉनर और हॉनेस्ट, ह साउंड से कभी भी आप इनको प्रोनाउंस मत करिएगा। वी हैव टू प्रोनाउंस देम सिंपली एज ऑनर और ऑनेस्ट, क्योंकि बोथ दिस वर्ड्स बिगन विद द फोनिक साउंड ओ, ओवल साउंड। सो ऑनर, ऑनेस्ट, ये जो साउंड है ये क्या है, वोवल साउंड है। आप है एच है इधर लेटर, तो सिंपली कॉन्सोनेंट समझ के इसके सामने आप ए नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी आर ग्रोन अप चिल्ड्रन नाउ एंड वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द फोनिक साउंड, फोनिक साउंड के हिसाब से आपको सोचना है। सो वी हैव टू राइट इट एज ऑनर, honest, so we will simply write and before them,
Okay, hence we say an honest man, it's an honor, because h is silent in these words, क्योंकि that's why what we used to call them as an honest man. हाँ, ये बहुत ईमानदार आदमी है. an honor, it's a big honor, ऐसा क्योंकि हम h से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, o से, honor. So more about a and an. Let us just simply see more about a and an. और क्या बोल सकते हैं हम a और an के बारे में. A and an are called indefinite articles. So articles में a, an और the भी हैं. तो we have now discussed about only a and an which are called indefinite articles. इनको हम indefinite articles बोलते हैं. This means indefinite articles होते क्या है? A and an are used when we do not talk about a particular person or a thing. मतलब indefinite मतलब हमें नहीं पता है कि particularly specially किसके बारे में हम बात कर रहे. A notebook means कोई भी notebook, a table, any table, an ice cream, any type of ice cream, it may be कोई भी ice cream हो सकता है. We are not specially talking about a single thing. So these are known as indefinite articles. इसीलिए हम इनको indefinite articles बोलते हैं. We are not talking about specially कोई particular thing के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो. Example, he lives in a city. Yes, वो रहता है, कहाँ रहता है? सिटी में. बट स्पेशली ये सिटी वो सिटी ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है. So simply what we used to write, he lives in a city. Can one guess, excuse me, sorry, can one guess about which city the sentence is? Yes, हाँ. Can anyone guess about which city the sentence is? मतलब he lives in a city मतलब आप तुरंत बोल सकते हो क्या वो किस सिटी में है. अगर आप स्पेशली बोलेंगे he lives in चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, कोटा, then we come to know that yes, हाँ स्पेशली इधर है. बट नाउ इफ इट इज ही लिव्स इन अ सिटी मतलब अपन को पता नहीं, हाँ ये कोई सिटी में रहते हैं. सो मेनी सिटीज आर देयर, वी आर नॉट क्लियर अबाउट इन विच सिटी ही लिव्स. सो कैन यू गस, आप कोई गस कर सकते हो क्या? नो, इट इज नॉट क्लियर एट ऑल. देयरफॉर वी यूज अ, इसीलिए हम सिटी के सामने ए यूज करते हैं. Is it okay, children? So again go through the video carefully, listen to the video, go through the examples and try to understand the differentiation. Not we should not use a or an on the basis of the vowel or consonant of the letter, but we have to focus on the sound, on the phonic sound of whether it is a phonic sound of vowel or phonic sound of a consonant. So kindly go through the video carefully and then try to do exercise A and be clear about the phonic sounds. Thank you.